Namaste to all my spiritual tribe members. Today we are going to speak about Lao Tzu, who was a Chinese philosopher, and the meaning of the name Lao Tzu itself is called as Old Master. It is very difficult to uh, speak और एक्सप्लेन अबाउट लॉन्जो बहुत डिफ़िकल्ट है उनके बारे में एक्सप्लेन करना डिफ़िकल्ट बिकॉज नो वर्ड्स कैन जस्टिफाई हिज विजडम एंड रैदर नो वर्ड्स कैन जस्टिफाई एनी विजडम एट ऑल शब्दों के थ्रू इट इज जस्ट एन अटेम्प्ट टू जस्टिफाई सम पार्ट ऑफ इट but with words you can't explain, you can't justify exactly your feelings. Or Lotso, though he was popularly known as the master of silence, he was the preacher of silence. While he has used words to explain a lot of things, while he has used words to write his only book, Tao Te Ching, some 2000 years old. I have this copy of this book, Tao Te Ching. This book is 2000 years old. It's written 2000 years earlier by Lao Tzu. उन्होंने कितने भी शब्दों का प्रयोग किया हो, but it can't justify because he himself has said that the silence is the best communication. What you can speak through your feelings without words, without using a single word, is the best communication. For all his life, his followers wanted him to write a book about his journey, about his wisdom. बट ही ऑलवेज डिनाइड उन्होंने कभी भी अपने लाइफ में कोई बुक नहीं लिखी थी बिकॉज ही सेड दैट ही कांट राइट हिज एग्जैक्ट फीलिंग्स द पीपल हिज फॉलोअर्स कैन ओनली अंडरस्टैंड थ्रू हिज साइलेंस even once Gautam Buddha has said that what I have spoken is one thing but the people who have really understood me has understood through my silence. और आपके लाइफ में भी द पर्सन हु अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स विदाउट यू सेइंग एनीथिंग आप कुछ भी मत बोलो और कोई इंसान आपको समझ जाए तो यू लाइक दैट पर्सन अलॉट और जितना वर्ड्स के आप यूज करते हो द मोर वर्ड्स यू यूज समवेयर इट इज डिसीविंग द वर्ड्स आर नॉट रियल so it happened in the life of Lao Tzu that one day he said that he told to all his followers that I'm going to the mountains to take my last breath and this is the final goodbye to all of you. And his followers insisted him, sir, please, master, before you go, write something. Write something for about your wisdom, about your life experiences. But he denied. So it happened like that he was going to the mountains to take his last breath, and uh, there came a border wherein he has to pass through. But the soldier who was deployed in that border was his follower only, but he denied him permission to pass through.
until and unless he write a book. So, in that duration of 3 days, he has written this book, Tao Te Ching, which are his experiences about Tao. And the first word of the book, the first sentence of the book, I'll read it. The Tao that can be trodden is not the enduring and unchanging Tao. The name that can be named is not the enduring and unchanging name. इनके बुक के स्टार्टिंग के 4 sentences itself explains the Lotso very well. He said that you can't explain really. You can't explain. Whenever you are in pain, आपको किसी ने आप किसी से बहुत प्यार करते थे और वो इंसान आपके साथ आज नहीं है, या आपने किसी दोस्त पे बहुत भरोसा किया था, उसने आपको धोखा दे दिया. यू कैन से दैट, आप बोल सकते हो कि मुझे बहुत बुरा लगा, बट एग्जैक्टली वॉट यू आर फीलिंग यू कांट एक्सप्लेन. यू कांट एक्सप्लेन. इस पूरे यूनिवर्स में इतना अबंडेंस है, यू कांट एक्सप्लेन. यू कैन से दैट ocean is abundant or this universe is abundant, but you are just trying to explain a part of it, because जो काउंटलेस है उसको आप कैसे एक्सप्लेन कर दो. दैट्स व्हाई सेड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन और टॉक अबाउट लॉट्सो, because his philosophy was absolutely different. Absolutely different. हम ये सब चीज़ें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सोचते भी नहीं, कि हम सारा दिन बात किए जा रहे हैं, बात किए जा रहे हैं, बात किए जा रहे हैं. बट आस्क योरसेल्फ, योर वर्ड्स आर जस्ट ट्राइंग टू डिसीव. आपको ऑफिस में किसी ने बोल दिया हाउ आर यू, यू से आई एम फाइन, दैट्स इट. और these words you're just trying to deceive people. और वो वर्ड्स के अराउंड आप इतनी सारी स्टोरीज बिल्ड कर देते हो, इतना सारा अपना लाइफ पैटर्न बिल्ड कर दिया है कि आप उसके बियॉन्ड जो फीलिंग्स है उसका मजा लेना या उसको समझना या उसको महसूस करना ही आप भूल गए हो. यू हैव टोटली लॉस्ट इट. Whenever you are in love, you want your partner to explain how much he loves. But जिस प्यार को explain कर दिया जाए वो प्यार ही क्या होता है. If you ask me how much I love my daughter, I can say very much, but still very much is not enough. Very, 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 very much it's not enough. I can't explain. I can only feel it. इफ़ यू से हाउ मच, इफ़ आई आस्क यू कि अगर आप आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान जो अनफॉर्चुनेटली जिसका डिमाइस हो गया है, हाउ मच यू लव दैट पर्सन एंड हाउ मच पेनफुल इट इज, यू कैन ट्राई टू डिस्क्राइब इन वर्ड्स थ्रू योर टीयर्स, बट स्टिल what you are going through is you are going through. It happened in the life of Lotso that every morning he used to take a walk with along with his followers. He had this habit that every morning he used to take with a lot of followers used to follow him, but only on one condition, that nobody can speak. No one can speak. Because according to him, if you appreciate beauty, you don't need words. And if you say anything about it, you put that thing in duality. I'll explain it later. But let's come back to this Lao experience of going for a morning walk. So it happened that one day one of his followers has took his friends, अपने उनके एक follower ने अपने एक दोस्त को भी ले लिया साथ में कि चलो ठीक है
we are going for a walk in case you want to join. And this person came and he saw that everybody is just walking. No one is speaking at all. No one is speaking at all. एंड उससे रहा नहीं गया बहुत देर आधा एक घंटा बस सब लोग इतने शांत थे उससे रहा नहीं गया एंड आउट ऑफ क्यूरोसिटी जस्ट टू इनिशिएट टॉक हम सब ऐसे करते हैं जब सब कोई शांत रहता है हमको लगता है कि कुछ खराब है कुछ तो गड़बड़ है एंड वी ट्राई टू इनिशिएट टॉक so out of curiosity he started to initiate talk okay, wow what a beautiful morning. Lotso did not reply, but when the walk was over, he asked that person, that follower, जिसने अपने दोस्त को लाया था कि please don't bring this person. He talks a lot. So initially, it was very surprising for this person कि इतना क्या बात कर रहे. He just said that the morning is beautiful. He said to Lao Tzu, but master, उसने इतनी बात ही नहीं की थी. He just said morning is beautiful. He just tried to express. And he replied, words are meaningless if you have to explain anything. You can't explain. Whenever you say that you love somebody or some person is good or some person is bad, तो उसमें दो बात होती है. एक बात that you hold a certain opinion about that person, और दूसरी बात that subconsciously you are comparing that person to someone else. If you say that somebody is my best friend, तो ask yourself, आप मतलब कह रहे हो कि आपके लाइफ में जितने भी लोग आए थे, जितने भी आपके फ्रेंड्स हुए थे, उसमें से आज के टाइम पे अभी दिस पर्सन ही और शी इज माई बेस्ट फ्रेंड. आपके बहुत सारे बेस्ट फ्रेंड्स पहले भी थे, आपके बहुत सारे बेस्ट फ्रेंड्स बाद में भी होंगे, बट दिस मोमेंट यू आर ट्राइंग टू डिस्क्राइब. सो एवरी मोमेंट इज ड्यूअलिटी, and whenever you try to speak a certain word, you are putting yourself into that duality, into that expectations. When I say words express duality, what does it mean? आप किसी भी चीज को उसके प्योरेस्ट फॉर्म में डिस्क्राइब नहीं कर सकते हो थ्रू वर्ड्स. लाइक आई टोल्ड अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड, तो आपका जो आज का बेस्ट फ्रेंड है तो आपका एक ओपिनियन है बिकॉज दिस पर्सन इज गुड टू यू और फॉर सो एंड सो रीजन ही और शी हैज हेल्प्ड यू. तो आज के टाइम पे दैट पर्सन इज योर बेस्ट फ्रेंड. पहले बहुत सारे थे, आगे बहुत होंगे, लेकिन आज के टाइम पे ये है. तो Lao Tzu always said that at every word or every instance that is happening, a seeker, a spiritual seeker, like all of you, our spiritual tribe members, should have a wisdom to see the both sides of it. हम लोग की गलती वहां हो जाती है जहां पे हम एक ही साइड में अटक जाते हैं और वहां से एक्सपेक्टेशंस डेवलप करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही कोई पैदा होता है तो यू डोंट स्पीक अबाउट दैट चाइल्ड्स डेथ ड्यूरिंग दैट मोमेंट. आपके ख्याल में भी नहीं आता वो चीज. बट जो पैदा हुआ है दैट हैज कम टू ड्युअलिटी एंड वो मौत की तरफ, डेथ की तरफ हर मोमेंट टू मोमेंट बढ़ता जा रहा है. और आप जब एक डेड बॉडी को देखते हो तो आपको ये ख्याल नहीं आता है कि एक टाइम पे ये भी एक बच्चा था जो पैदा हुआ था, मासूम सा, इनोसेंट सा. यू डोंट थिंक अबाउट दैट. व्हेनेवर यू सी समबडी वेरी ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत है, तो आपको ये ख्याल नहीं आता कि एक दिन इसको भी बुढ़ापा होगा. Like all the beautiful actresses we had in our yesteryears,
इतनी सुंदर सुंदर एक्ट्रेसेस थी बॉलीवुड में, बट आज आप उनको देखोगे, ऑल्दो दे हैव द ग्रेस ऑन द फेस, बट स्टिल ओल्ड एज इज देयर। और आज के जो एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं जिनको देख के हमको लगता है वाओ दे आर सो ब्यूटीफुल, वो भी एक दिन बूढ़े होंगे, आप, मैं, हर कोई। तो whenever the true wisdom is you see things in totality, आप उसको एक तरफा देखते हो ना, तो आप उसमें उलझ जाते हो। किसी ने आपको बोल दिया फॉर एग्जाम्पल दैट यू आर अ वेरी गुड पर्सन, आई रियली लाइक यू, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। आप एक एक्सपेक्टेशन से फिल कर लेते हो उस सामने वाले इंसान से, और जब भी वो इंसान आपको मिलता है बोलता है वाह आज भी यू लुक सो ब्यूटीफुल सो ग्रेशियस, और आपके एक्सपेक्टेशंस डेवलप होते रहते हैं until and unless one day it so happen that that person is not in the mood, or for some reasons or for something else वो आपसे बात करना भूल गया, या कुछ दिनों तक वो अपने प्रॉब्लम्स में था, उसने आपकी तारीफ नहीं की। आपके दिमाग में जो उसके बारे में जो स्टोरी थी, आपने एक स्टोरी बिल्ड की थी, दिस इज द नेम, दिस पर्सन यहाँ रहते हैं, दिस जेंडर, दिस एज, रोज मेरी तारीफ करते हैं, इज अ नाइस पर्सन, बहुत सिंपल है, सबका ध्यान रखते हैं, ही इज वेरी केयरिंग, ही इज वेरी फैमिली पर्सन, ब्ला 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 ब्ला। पूरी आपने एक स्टोरी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में आप बिल्ड कर लेते हो। वो एंटायर स्टोरी भले कितने साल की पुरानी हो ना, आप चेंज कर दोगे आपके इस एक्सपीरियंस से, बिकॉज नाउ विल से वाओ इसमें बहुत ईगो आ गया। मे बी शायद अभी इसको मैं वो वैसे खूबसूरत नहीं दिखता या नहीं दिखती, मे बी इसका कुछ काम था मुझसे, तभी मुझसे ऐसे बातें करता होगा। फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में पूरी स्टोरी चेंज। तो जो भी आपकी तारीफ करता है ना, तो ये समझ लेना कि कभी ना कभी ऐसा होगा कि उसका ओपिनियन चेंज होगा, या आपके दिमाग में उसकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो चेंज होंगे। और जो भी आज आपकी बुराई कर रहा है, तो ऐसा हो सकता है कभी ना कभी उसका भी ओपिनियन आपके लिए चेंज हो। नथिंग इज परमानेंट। So that is why Lao Tzu has always said that when you use the word, it is very difficult to understand your true feelings. Or if the feelings, the true feelings you can't describe through words. तो आप मुझसे कहोगे कि ओके बट हाउ टू एक्सप्रेस, मतलब अपने आप को अगर हम वर्ड्स यूज नहीं करेंगे तो हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे अपने आप को। आई एग्री ऑन दैट, इवन मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ तो आई एम ट्राइंग टू यूज वॉट एवर वर्ड्स आई कैन यूज, और मुझे जितना भी आता है आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू थ्रू वर्ड्स ओनली, बिकॉज अगर मैं यहाँ पे साइलेंटली बैठा भी रहा तो आई एम नॉट श्योर कि हाउ मच आप लोग मुझसे कनेक्ट कर पाओगे। बट सो आई हैव टू यूज माई वर्ड्स, एंड इवन all the great masters of the past have used words. But ask yourself, आप दूसरों से बात करने के लिए वर्ड्स यूज कर रहे हो, दैट इज वन थिंग, ओके यू आर यूजिंग इट। बट आप अपने आप से बात करने के लिए भी वर्ड्स यूज करते रहते हो। व्हेन आई टेल यू कि ओके साइलेंस, तो इसका मतलब आपके लिए ये होता है कि आपको किसी से बात नहीं करनी है, लेकिन उस वक्त आप अपने आप से बात करते रहते हो। ओके आज ऐसा करना है, आज इतने बजे घर जाना है, आज इतने बजे मुझे पहुंचना है, ओके कल मुझे ऐसा करना है, कल मेरा ये शेड्यूल है। यू स्टार्ट स्पीकिंग टू योरसेल्फ। अपने आप से बात करने के लिए वर्ड्स आर नेसेसरी। इफ यू आर इन पेन, इफ यू आर इन लव, दैट फीलिंग itself says it all. Why you need words to talk to yourself? So that is something you have to understand, that words are just trying to deceive. Words, and if I say words are trying to deceive, it's maximum. I will not say कि हर चीज हर कोई अपनी फीलिंग्स को छुपाने के लिए वर्ड्स यूज करता है, कोई कोई बहुत जन उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी अपने वर्ड्स यूज करते हैं, जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। वॉट एवर आई नो आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन थ्रू दी वर्ड्स। जब एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय नया नया जॉब पे लगता है, तो वन थिंग इज ही फोकस ऑन
his language, the way he speaks, the way he communicates. Communication पे बहुत ध्यान देते हैं कि ऐसे बात करो, ये वर्ड्स यूज करो, एम्पथी ऐसे दिखाओ। द मोस्ट कम्युनिकेशन में बहुत ध्यान देते हैं एंड एवरीबडी इफ यू आपने भी जब कभी अपना बहुत जॉब स्टार्ट किया होगा तो सबने आपको बोला होगा यूज राइट वर्ड्स, अ गुड कम्युनिकेशन। बट यू नो, as people grow as people grow and reach at a certain level of uh, executives or directors level, communication is part of the entire setup. The next thing they try to focus on the body language. Body language is very important, has become very important for them. फिर वो जब भी कभी आप किसी भी एचआर में या किसी इंटरव्यू से पूछ लो, जो इंटरव्यू जो इंटरव्यू देता है, जो बातें करता है, उससे ज़्यादा दे फोकस ऑन द बॉडी लैंग्वेज पार्ट, हाउ इज बिहेविंग, what he's maybe how he's walking, what he's wearing, all these things. बिकॉज आप अपने फीलिंग्स के थ्रू आप जब वर्ड्स यूज करते हो, बिकॉज आपने अगर मैं आपको ये बोल दूं कि जस्ट सिट साइलेंटली, डोंट डू एनीथिंग, डोंट टॉक टू योरसेल्फ, जस्ट सिट साइलेंटली, आपने देखा होगा बहुत लोग ना कुछ करते रहते हैं, मे बी दे स्टार्ट स्ट्रेचिंग देयर हेड, मे बी उनके पैर ऐसे चलते रहते हैं। मेरे ऑफिस में काफ़ी, मैं जब जॉब करता था देखता था काफ़ी लोग अपने वर्क डेस्क में बैठ के उनके पैर हिलते रहते थे, या तो हाथ हिलता रहेगा या तो पेन से कुछ करते रहेंगे, बिकॉज वो साइलेंस तो हो गए वर्ड्स के थ्रू, बट दिमाग उनका साइलेंस नहीं हुआ है। सो द बॉडी हैज टू एक्सप्रेस, तो सम वे बॉडी स्टार्ट एक्सप्रेसिंग, सम वे बॉडी स्टार्ट एक्सप्रेसिंग। उनकी बॉडी शांत नहीं रहती, कुछ ना कुछ उनको करना ही होता है, तो वो वर्ड्स के थ्रू बात नहीं करते लेकिन बॉडी बात करती रहती है। तो दैट्स वाई द बॉडी लैंग्वेज पे अभी बहुत ज़्यादा काफ़ी सालों से फोकस हो रहा है। इवन दस एंटायर स्टडी विच स्पीक्स अबाउट बॉडी लैंग्वेज, कि अगर कोई, और आप अगर एक अच्छे ऑब्जर्वर हो, इफ यू आर अ गुड ऑब्जर्वर और इफ यू आर अ साइकिक, यू कैन जस्ट स्टैंड इन योर बालकनी और समवेयर जहाँ पे आप लोगों को आते जाते हैं वो देख रहे हो, just the way they are walking, just the way they are using their body language, आप exactly समझ सकते हो कि वो क्या सोच रहा है वो इंसान। बट यू हैव टू बी साइलेंस अपने अंदर, फिर आप किसी की आवाज़ सुन सकते हो। बहुत बार ऐसा होता है कि ये दैट आप बहुत परेशान हो, आपका अंदर बहुत कुछ बातें चल रही है, या मे बी आपका झगड़ा हुआ है और आप पार्टी में चले गए, फिर लोग ये नहीं जाने कि आपका मूड अच्छा नहीं है, यू स्टार्ट स्पीकिंग, हाउ आर यू, ग्रेट, आपने वो मूवी देखी क्या, यू स्टार्ट स्पीकिंग, यू स्टार्ट हाइडिंग योर फीलिंग्स। सामने वाले से बात करते रहते हो, और अगर सामने वाला आपसे बात नहीं कर रहा हो, यू आर स्टैंडिंग समवेयर, तो आप अपने आप से बात करते हो, जस्ट कीप यूजिंग द वर्ड्स, यूजिंग द वर्ड्स, यूजिंग द वर्ड्स। See, you find nature beautiful, you find dog very loving, because they don't use words. अगर आपको भी, अगर कहीं ऐसी जगह बिठा दिया जाए जहाँ पे आप बात बिल्कुल नहीं करो, एक दिन, दो दिन, तीन दिन आपको अजीब लगेगा, लेकिन उसके बाद यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग, यू स्टार्ट फीलिंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी, बिकॉज आपकी बातें करने में जितनी एनर्जी वेस्ट हो जाती है, आप उस सबको प्रिजर्व कर लेते हैं। I remember I have gone to Vipassana, wherein for 10 days you don't have to speak. I try to follow it during my day whenever it is possible, especially when the time when I'm alone. You just sit silent, you don't speak, and just observe yourself. That is the entire motive of Vipassana. कि आप just बैठे रहो and whatever is happening to your body, just see it through your third eye or through your feelings. Try to see it. आप कभी 15-20 मिनट या 1 घंटा डोंट टॉक with anyone and with yourself, and just after that you see how much energy you have preserved.
आप बातें करने में अपनी इतनी एनर्जी वेस्ट कर देते हो that you don't have time to, when you sit for meditation also, up you find that your thoughts are coming, thoughts are coming, thoughts are coming. And I understand if you're working somewhere, or if you have to speak to your relationship, your family, you have to use words, but ask yourself, ये कितनी बार ऐसा हो रहा है कि आप अपनी फीलिंग्स छुपाने के लिए बात कर रहे हो, और आप ऐसे बात कर रहे हो जहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है, और सबसे ज़्यादा आप अपने आप से बातें करते रह रहे हो। व्हेन यू आर गोइंग टू द ऑफिस, यू आर ट्रैवलिंग, और आप बात कर रहे हो। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल, जब मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो आप मेरी बात नहीं सुन रहे हो, यू आर नॉट साइलेंट इनसाइड। जो जो मैं बोल रहा हूँ उस पर आपका एक नीचे अपना एक स्टोरी बनती जा रही है, यहाँ सही बोल रहे हैं, नहीं ये बात गलत है, नहीं ऐसा तो नहीं होता मेरे साथ, नहीं नहीं नहीं, हाँ ऐसा मेरे साथ पहले हुआ था। तो आप वीडियो सुनते सुनते आप अपने आप से बात करते जा रहे हो। डज इट, इजंट इट सरप्राइजिंग? ये अजीब नहीं है थोड़ा सा? मतलब ऐसा हो रहा है कि मैं जो भी आपको बोल रहा हूँ, हर लाइन के बाद आपका कुछ ना कुछ आपका पास्ट का कोई एक्सपीरियंस होगा, या आपका कोई ओपिनियन होगा, आप वो देते जा रहे हो, देते जा रहे हो अपने दिमाग में। यू आर नॉट साइलेंट। और जब तक आप साइलेंट नहीं होगे, मेरे को आप अपने अंदर से सुनोगे कैसे? बिकॉज वर्ड्स की वजह से यू आर नॉट अलाउइंग मी टू गो इनसाइड यू। Whenever we meet, or whenever it happens that we are meeting, you expect me to talk to you, you expect me to say a lot of words. But isn't it uh, amazing that we don't need words to talk? We just sit beside each other, we sit, हम बस एक दूसरे को देखते रहे, जस्ट हम we hug each other and everything is spoken. मेरे ये बोलने से कि आई केयर फॉर यू, या यू आर अमेजिंग पर्सन, क्या फर्क पड़ जाता है? आपको बस एक और वैलिडेशन मिल जाता है, और कुछ नहीं होता। जैसे बहुत सारे वैलिडेशंस आपको लोग दे रहे हैं, सही दे रहे हैं, गलत दे रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूब में गुरुज आपको वैलिडेशन दे रहे हैं, जस्ट एक और वैलिडेशन आपको मिल जाएगा। और बहुत सारे वैलिडेशन आपको पहले भी मिल चुके हैं और आगे भी मिलेंगे, उससे क्या ही फर्क पड़ जाता है? लॉर्ड यूज्ड टू से, मुझे कोई हरा नहीं सकता, बिकॉज मैं हारा हुआ हूँ, मैं पहले से ही हारा हुआ हूँ। मुझे और ना जीत से प्यार है, ना जीत की अपेक्षा है, और ना ही मुझे हार से कोई फर्क पड़ता है। दिस इज अ वेरी पावरफुल स्टेटमेंट। आई रिमेंबर दिस पर्सन was talking to me, this client was talking to me for past few months, because she was participating in some competition. And since day one when she came to me for reading, she said कि क्या मैं नंबर वन आऊंगी? That was the only thing. तो आप ऐसे इंसान से क्या ही बात करते हो? You say yes. Because if you say no, तो जितना एफर्ट्स वो डालने वाले हैं वो नहीं डालेंगे। बट प्रॉब्लम यस से भी है, बिकॉज नाउ शायद जितना एफर्ट्स चाहिए उससे वो कम होगा। तो ऐसे बहुत सारे डिफिकल्ट सिचुएशंस होते हैं। लोग कंपटीशन में या कहीं भी पार्टिसिपेट करने से पहले यही सोचते हैं दैट आई हैव टू विन। उनके लिए विनिंग ही एक मात्र खुशी का पूरा इंतजाम हो जाता है। दे रेस्ट ऑल देयर हैप्पीनेस ऑन certain aspect of a certain result or something like that. Or for some reason, if they don't win, they are sad. The person who wants to win somewhere, he is sowing the seeds of losing also. क्योंकि आप हार तभी ही सकते हो जब आपको जीतने की उम्मीद हो। अगर मुझे अगर ऐसा बोल दो मुझे नहीं जीतना है, मुझे हारना ही है, तो आपको कौन हरा सकता है? लोग उसी को हराना चाहते हैं जो जीतना चाहता है।
If you don't want to win, the people are not interested in you. और किसी भी कंपटीशन में लोग इसीलिए पार्टिसिपेट करते हैं क्योंकि लोग उनको हराना चाहते हैं। वो जीतना चाहते हैं वो एक और बात है, वो लेकिन लोग उनको हराना चाहते हैं। दैट इज द रीजन दे टेक पार्ट इन द कंपटीशन। Otherwise, if you say, I don't want to win at all, I'm happy with whatever I have, I'm okay to lose. I want to lose. So people don't want to compete with you. आप अगर किसी के साथ दौड़ रहे हो और आप बस चलते रहो, बोलो कि ठीक है भाई तू ही जीत जाए, तो सामने वाला भागेगा ही। लेकिन आप बोलो कि ठीक है, देखते हैं कौन जीतता है, वो आपसे ज़्यादा तेज भागने की कोशिश करेगा। और यही हो रहा है हम सबके साथ। हम बस एक दूसरे से ज़्यादा तेज भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, बिकॉज हमको कुछ जीतना है। हम या तो जीत जाते हैं या तो हार जाते हैं। जीतने की खुशी, हारने का स्ट्रेस, फिर नेक्स्ट गेम, फिर जीत, फिर हार, फिर स्ट्रेस, फिर हैप्पीनेस, फिर स्ट्रेस, फिर हैप्पीनेस। कुछ कुछ आई अंडरस्टैंड, बट आस्क योरसेल्फ, ये कुछ कुछ कितना कुछ हो गया है आपकी लाइफ में। हर एक छोटी सी छोटी चीज से कितनी सारी उम्मीदें लगा दी है। ये मेरा अच्छा दोस्त, ये ऐसे ही बिहेव करना चाहिए, ये मेरे पार्टनर, ही शुड ऑलवेज लव मी एंड लव मी, ये जो मेरा ऑफिस है यहाँ से मुझे प्रमोशन मिलना चाहिए। एवरीथिंग यू आर एक्सपेक्टिंग, और आप जहाँ पे जो भी एक्सपेक्टेशंस आप पॉजिटिव, आप एक्सपेक्टेड रिजल्ट करते हो, दैट मीन्स somewhere you are also throwing out a possibility of the opposite result. Doing something what you love is a success. अगर आप एक कॉर्पोरेट जॉब में हो and you have invest lot of properties, you have lot of investment, lot of shares, but somewhere you wanted to become a painter or someone else, something else. So whatever you are achieving, it's not a success. It's a just an outcome of whatever you're doing it. That's it. But a person, maybe somebody wants to become a teacher and he or she is not earning so well, but she's happy with what she's doing. It's a real success. So that's why all these successful people, all the richest people in the world are actually doing with what they are happy. तो उसमें फेलियर और सक्सेस का कोई फर्क नहीं पड़ता। आप वो कर रहे हो वो बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन ask yourself, Laozi said that whatever you are doing, you are expecting, you are expressing through words. Words you feel are very powerful, but somewhere the words are powerless as well. Words are making you powerless. Words are deceiving you. Somebody has told you, I love you, and you relied on that person. Somewhere in your heart, your heart said that he or she is not the right person for you. But you have relied on his or her words. उसकी बातों में आप आ गए। आपके इंट्यूशन ने, आपके सिक्स सेंस ने बोला था, नो, ये सच नहीं बोल रहा है। बट फिर भी उसने आपसे इतनी बड़ी बड़ी बातें की, आपको इतने अच्छे अच्छे टेक्स्ट किए, इतने अच्छे अच्छे पोएम्स लिखवाए, पोएम्स लिखे आपके लिए, आपको लगा वो कि मे भी शायद मैं गलत हूँ। एंड आफ्टर फ्यू years that person has left you, and again now you are like, oh, you're crying, you are sobbing, you're contacting a face reader. आपका इंट्यूशन एकदम सही था, your feelings were right, बट आप बातों में आ गए। तो लॉन्जे has always said that जो बातें इंट्यूशन के थ्रू होती है, जो साइलेंस के थ्रू होती है, that is the best communication. When you sit beside a dog and you feel so much of love, that dog is not speaking, but still that his lick, his coziness gives you so much of warmth in your heart. That's a powerful communication. और एक इंसान जो आपको कितना भी कुछ बोल दे, और बट समवेयर यू फील दैट नो यार, कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है, यू आर नॉट फीलिंग राइट। आपका दिल बोलता है कि दैट यू डिजर्व ऑल द हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड, यू आर वेरी हैप्पी,
you are a special child of God, and all the intuitions you have of great things in life, but still you want people to tell you about it. जो आपके अंदर से आ रहा है, यू डोंट रिलाई ऑन दैट। और अगर आप उस पर रिलाई नहीं करते तो आप ऐसे इंसान में, या जो आपको बस वैलिडेशन दे देगा, उससे आपको क्या ही फर्क पड़ जाएगा। व्हाट मैटर्स टू यू। जो इंसान आपके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें करता था, आज वो इंसान बदल गया, और आज जो आपके साथ हैं शायद वो पहले कोई और थे और आगे कोई और होंगे। सो जब तक आप इन सब चीज़ों को पकड़ के बैठे हो ना, कि मेरा बेस्ट फ्रेंड है, आप अपने आप से पूछ लो, आपके बेस्ट फ्रेंड भले कितने भी साल का आपका बेस्ट फ्रेंड होगा, कुछ ऐसी चीज़ कर देगा जिससे पूरी दोस्ती 1 मिनट में टूट जाएगी। आपके बॉसेस, एज लॉन्ग एज दे आर प्रमोटिंग यू, यू आर हैप्पी विद देम। जिस दिन आपको ले ऑफ कर दिया, या फॉर सम रीजन ही कांट प्रमोट यू, सब चीज़ें बदल जाएंगी। तो आप जो जो चीज़ें अपने दिमाग में लेके बैठे हो ना, आस्क यू नीड, दिस इज द टाइम टू एनालाइज। You love your partner for what? Is it that he is a good person? He does a lot of things for you, and he buys you expensive gifts. He gives you a luxury life. Or you just love that person because he is a beautiful soul. आज वो भी जो भी आपके लिए कर रहा है या कर रही है, क्या वो अगर वो नहीं करेगी तो क्या प्यार रहेगा या नहीं रहेगा? और अगर नहीं रहेगा तो ये कौन सा प्यार है? एक इंसान से आप बहुत प्यार करते थे, आज उसने आपको छोड़ दिया तो आपका प्यार भी छूट गया। ये कौन सा प्यार है? इसका मतलब प्यार वॉज नॉट देयर इन द फर्स्ट प्लेस इटसेल्फ। आई अंडरस्टैंड यू हैव टू मूव ऑन, बट प्यार कभी नहीं मरता। एक गुलाब का फूल खिला, मुरझा गया, तो आपका प्यार भी उससे, आपने उसको फेंक दिया, दैट इज अ पार्ट ऑफ इट, लेकिन उसकी जो ब्यूटी है ना वो हमेशा रहती है। अ विथरिंग फ्लावर इज ऑल्सो ब्यूटिफुल इन इट्स ओन वे। एक गुलाब का खिलता हुआ फूल अ, सिर्फ खूबसूरत नहीं होता जब वो कली होता है, जब वो मुरझा जाता है, वो भी एक नेचर का खूबसूरती है। और अगर आप खिलते हुए फूल को ही प्यार करते हो तो आप प्यार कंप्लीटली नहीं करते। आप किसी इंसान से सिर्फ तभी ही प्यार करते हो एज लॉन्ग एज दैट पर्सन इज विथ यू, तो आप एक्चुअली प्यार नहीं करते। अब अपने बच्चों से बचपन में प्यार करते थे, आज वो इंसान वो बदल गया है या जो भी हो गया है और आपका प्यार भी बदल गया है, तो ये क्या प्यार था? एक नदी किनारे पे अ, एक बहुत अच्छा एक साधु, या कोई ऐसा इंसान जिसने बहुत पाप किए हैं, या कोई ऐसा इंसान जिसने बहुत मर्डर किए हैं, रेप किए हैं, और एक बहुत अच्छा साधु, प्रीस्ट, नदी सबकी प्यास बुझाती है। नदी को, उससे नेचर को कोई फर्क नहीं पड़ता है व्हाट यू आर, वो कर्मा देख लेता है अपना, लेकिन नेचर को फर्क नहीं पड़ता। और जहाँ फर्क पड़ता है, दैट इज टेम्परेरी। आप मुझे बोलोगे कि ओके मनी हैज़ अ वैल्यू, ओके 500 रुपीज़ का आप नोट ले लो, एंड यू से कि ओके वैल्यू, इफ आई आस्क यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस करेंसी, यू से 500 रुपीज़। बट आस्क योरसेल्फ, सो दिस इज अ ड्युअलिटी व्हिच Lao Tse is speaking about, which you choose to ignore। डीमोनेटाइजेशन होने के बाद तो आपको पता है कि आपके हाथ में जो करेंसी थी इसकी कोई वैल्यू नहीं थी, बट दैट इज अ डिफरेंट केस। आई गिव यू नॉर्मल एग्जांपल अकॉर्डिंग टू व्हिच व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन व्हाट लॉजे का जो फिलोसफी थी, बट एंड दैट इज वेरी डीप। और ये अगर आप चीज़ें ऐसे सोचने लगोगे ना, आपके बहुत सारे स्ट्रेस ऐसे चले जाएंगे, बिकॉज बहुत सारे स्ट्रेस है नहीं, आप लेके बैठे हो बहुत सारे स्ट्रेस। इट्स लाइक आपने मुट्ठी बंद कर दी, जो मैंने आपको बोला था, अब मैं बोल रहा हूँ खोल दो। अगर जो बंद मुट्ठी में खूबसूरती है, खुले में भी खूबसूरती है। तो अकॉर्डिंग, सो कमिंग टू द सेम एग्जांपल एज पर द लॉजे फिलोसफी, 500 रुपीज का नोट अगर आप बोलते हो इट हैज द वैल्यू, इफ आई आस्क यू द वैल्यू ऑफ इट, यू से 500 रुपीज। अब उस 500 को एक बच्चे के हाथ में दे दो और पूछो वैल्यू, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको वो अभी तक पता ही नहीं है कुछ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बच्चे के सामने उसकी वैल्यू है ही नहीं। अब उसी 500 रुपीज के नोट को आप एक अनएम्प्लॉयड को दे दो, जिसके पास बिल्कुल पैसे नहीं, जो थोड़ा गरीब सा है,
कि वो 500 रुपये नहीं है, उसके लिए 5 करोड़ रुपए। बिकॉज वो फिर वो जो प्लान करेगा ना, वो काफ़ी कुछ प्लान करेगा, उसमें से ऐसा करना है वैसा करना है, एक एक रुपए का वो प्रॉपर प्लान करेगा कि उसको कैसे करना है। आप उसी 500 रुपये को किसी बिजनेसमैन के हाथ में दे दो, वो ये सोचेगा इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है। आप उसी 500 रुपये को किसी यंगस्टर के हाथ में दे दो, वो यही सोचेगा उसके लिए वैल्यू बस इतना है कि उसको कहाँ खर्च करना है। आप किसी बूढ़े इंसान को दे दो, वो कुछ और सोचेगा। आप किसी डेड बॉडी के बाजू में 500 रुपये रख दो, फिर तो जीरो वैल्यू है। तो जो वैल्यू चेंज होती है ना, दैट इज नॉट द रियल वैल्यू, दैट्स व्हाट लाओ त्से वांट्स टू स्पीक अबाउट। और जो रियल होती है उसको आप ना ही एक्सप्लेन कर सकते हो और ना ही वो पार्शियलिटी होती है। एक सूरज की रोशनी अगर एक बच्चे को पे पड़ती रहती है, उसको भी गर्मी लगती है। अगर एक बूढ़े पे पड़ती है तो उसको भी गर्मी लगती है। अगर एक डेड बॉडी पे पड़ जाए उस पर भी गर्मी लगती है। नेचर इज इम्पार्शियल, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता नेचर को कि आप क्या हो, कहाँ हो, कैसे हो, या आपकी क्या कर्मास है। सो आप कभी भी, आप द ट्रू विजडम एज अ सीकर, आप किसी को देख रहे हो कि बहुत खूबसूरत है, तो उसकी खूबसूरती के पीछे जो बदसूरती है कि दैट इज अ पासिंग मोमेंट, एवरी मोमेंट इज पासिंग मोमेंट, और एक दिन ऐसा आएगा दैट दैट पर्सन विल बिकम ओल्ड और ये फेम नेम सब चला जाएगा। सी दैट, उससे आपका जो अंदर की खूबसूरती है ना वो निखरने लगेगी, और आप ये जो बाहरी खूबसूरती में पड़ जाते हो ना कहीं उसी से आपका अट्रैक्शन कम होने लगेगा। आई सी लॉट ऑफ पीपल कमिंग टू मी कि हमारी शादी हो गई है, मेरी जो वाइफ है, मेरे हस्बैंड पहले जैसे थे आज नहीं है। एंड व्हेन आई ड्रिल डाउन आई अंडरस्टैंड दैट उन्होंने शादी फॉर फिजिकल अट्रैक्शन के लिए की थी। यू दे फॉलन फॉर ईच अदर फिजिकली, बहुत अट्रैक्टेड थे, शादी कर ली। अब शादी के बाद हाउ नो मैटर हाउ मच टाइम यू मेक लव, एक टाइम के बाद तो आप उससे बोर ही होने वाले हो उस इंसान से। देन यू हंट आउट टू सम अदर पर्सन, आपको लगता है यार यहाँ पे प्यार नहीं है, चलो यही प्यार हम कहीं और ढूंढते हैं। प्यार है ही नहीं बिकॉज उसका रीज़न ही कुछ था ही नहीं। आपने उस इंसान से किसी रीज़न के लिए प्यार किया था। आप आज किसी इंसान पे, आप अगर आपको कोई फिजिकल अट्रैक्शन है और आपको पता चलता है उस इंसान को कोरोना है या जो कुछ है, इंस्टेंटली आपके दिमाग में स्टोरी चेंज हो जाएगी, आप जो फिजिकल अट्रैक्शन है ड्रॉप हो जाएगा आपका। तो ये बहुत सारी सी छोटी छोटी चीज़ें आप पकड़ के बैठ रहे हो, जो एक पासिंग मोमेंट है, उसका आप ड्यूअल साइड नहीं देख रहे हो, जो फ्लिप साइड ऑफ इट। अगर इंसान कोई आपको बोलता है कि यू आर अ गुड पर्सन, तो अंडरस्टैंड कि आज लॉन्ग एज, बहुत सारे केसेस में जब तक आप वो इंसान को कुछ दे रहे हो या कुछ कर रहे हो, तब तक उसका आपके लिए ओपिनियन है। और अब वो ओपिनियन रखने के लिए काफ़ी कुछ आप कर रहे हो। आप बहुत बार ऐसे होता है रिलेशनशिप में, रिलेशनशिप बचाने के लिए लोग पैसे खर्चा करते हैं या ऐसी चीज़ें करते हैं जो उनको पसंद नहीं है, जस्ट वो बचाने के लिए। और जिस दिन वो खत्म हो गई, वो रिलेशनशिप भी खत्म हो जाता है। बहुत सारी दोस्ती ऐसे खत्म हो जाती है। तो आपकी जो जितने भी रिलेशनशिप से, आज की से, क्या आप कुछ ऐसा हो सकता है जिससे वो टूट सकता है? आपकी तरफ से नहीं, उनकी तरफ से नहीं, आपकी तरफ से। From your side, is it that the person who you love a lot, is it that is there a reason why you love that person? And if that reason doesn't exist, your love will exist or not. If you if you wanted to achieve a certain thing in your life, if that thing you don't get, would you be still happy as today, or would you be just spending all your life uh, repenting or feeling guilty about it? The person who is unfortunately no more in your life, आपके parents या आपके partners, you still love that person, but don't you think that the the day that person was born, he was bound to get died? ये सबके साथ हो रहा है, सृष्टि में हर कोई जी रहा है, मर रहा है, जी रहा है, मर रहा है, वो सर्कल चलता जा रहा है। आप भी यहाँ पे बहुत, जो मुझे सुन रहा है, आपकी भी डेथ होने वाली है। आपकी बहुत सारी डेथ हो चुकी है, मेरी खुद की बहुत सारी डेथ हो चुकी है, ये लाइफ भी चली जाएगी। और ऐसा भी हो सकता है कि जो मुझे सुन रहा है कि मैं उस टाइम पे मैं जिंदा नहीं हूँ, ऐसा भी हो सकता है कि
कि अगर बहुत साल बाद या कुछ महीनों बाद आई एम नॉट देयर, यू आर लिसनिंग टू द वीडियो, आई एम नॉट अलाइव. That is part of life, that is part of existence. And if you say that I want to live my life, to understand that death is also coming, accept that also. आप किसी चीज को एक पार्ट को एक्सेप्ट करके आप बोल नहीं सकते कि आई लव माई लाइफ, आई लिव माई लाइफ. आप अगर किसी इंसान से प्यार करते हो तो आप उसके केयर से, आपके उसके खाना बनाने से या उसकी खूबसूरती से प्यार करते हो, तो यू हैव टू एक्सेप्ट दैट पर्सन इन टोटलिटी. वो इंसान को भी गुस्सा आता होगा, वो इंसान भी बहुत बार चाइल्डिश बिहेव करता होगा, तो यू एक्सेप्ट दैट थिंग इन टोटलिटी. एंड इफ यू से दैट आई लव एज लॉन्ग एज दिस पर्सन इज बिहेविंग दिस वे, तो आप किसी शर्त को या किसी चीज को आप लव का नाम दे रहे हो. आप वर्ड्स यूज करके उस चीज को, उसको अपने आप से और उस इंसान को धोखा दे रहे हो. यू आर ट्राइंग टू डिसीव थ्रू वर्ड्स. एंड दैट्स ऑल. ऑल्सो I was on the opinion that feelings are the best, intuitions are the best communicators. Words deceive, and words, and at the same time, words can't express, or the words can't say your true feelings. आप अगर किसी इंसान से बहुत प्यार करते हो, you can't explain. You can write poems about it, you can write a lot of good things about it, but still you can't explain. How can you explain God? How can you explain God? You can't. You can say it's he is the generator, operator, destroyer. You can give a lot of meanings. You say who is the uh, creator of the scene and the earth. You can see a lot of things, but you can't explain. You can only explain through your feelings to yourself. And there was a time when universe was newly started, and the man started to take a birth in the universe after a lot of animals and the nature was there. तो बहुत साल बाद जब इंसान भी धरती पे आने लगा, उनको उनके पास वर्ड्स नहीं थे. उनके पास वर्ड्स बिल्कुल नहीं थे, बट स्टिल उनमें झगड़ा बहुत ही कम होता था, बिकॉज फिर वो एक दूसरे को फीलिंग्स के थ्रू बात करते थे. और बहुत सारे ऐसे ऐसे इस पूरे यूनिवर्स में, अर्थ के बाहर ऐसी ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पे लोग फीलिंग्स से बात करते हैं. वर्ड्स अभी तक इन्वेंट नहीं हुए. दे टॉक थ्रू फीलिंग्स. दे डू एवरीथिंग. दे मेक लव, दे डू एवरीथिंग, बट दे टॉक थ्रू फीलिंग्स. द बेस्ट वे द गॉड कैन स्पीक टू इज थ्रू योर फीलिंग्स. फिर उसके बाद अगर आप उसको नहीं सुनते हो तो वर्ड्स एंड लॉट ऑफ थिंग्स कम्स, बट द फर्स्ट थिंग इज योर फीलिंग्स. आप जब अपनी माँ के गर्भ में होते थे, जब आप माँ के गर्भ में थे, तो आप अपनी मॉम से कैसे बात करते थे? तो योर फीलिंग्स. मॉम को पता, माँ को पता चल जाता है कि बेटे को भूख लगी है, या जब नया नया नवजात शिशु होता है, माँ बात भी नहीं करता, माँ उसके रोने से या उसके हाव भाव से माँ को पता चल जाता है कि उसको क्या चाहिए. माँ का पेट भरता है तो बेटे का पेट भर जाता है. तो कितना, जब ये लाइफ स्टार्ट होती है तो कितनी ब्यूटीफुल होती है, कितनी इनोसेंट होती है, कितनी गॉडली होती है. और जैसे जैसे हम नए नए वर्ड सीखते हैं, नए नए वर्ड सीखते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो गॉडलीनेस हम लोग का उस पर परत पे परत, जस्ट इट्स अ फसाड 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 फसाड. तो वी ऑल आर born so godly. Still that godliness is there. That's why I always tell you my greetings to God inside you. Because I know that ये जो आपकी परत है, ये जो आपका चेहरा है, उसके पीछे कौन बैठा है. ये जो ऊपर की परत है, जो एक दिन तो ये परत हटने वाली है, और आपके अंदर का जो डिवाइन है वो एक्सप्लोड होने वाला है. तो यू स्टार्टेड योर लाइफ सो इनोसेंटली. वी ऑल हैव स्टार्टेड, बट वर्ड्स की परत, ये परत, वो परत, बस फसाड फसाड फसाड. और हम
ऐसा लगता है कि बस बहुत सारे चीज़ों के, बहुत सारे वर्ड्स के नीचे छुप के हम लोग का जो ट्रू है, हम लोग के जो एक्चुअली हम है ना, वो पीछे छुप के बैठ गए। हम किसी को दिखाना नहीं चाहते, दरवाज़ा बंद कर दिया। हम प्यार भी अंदर से ही कर लेते हैं, हम सबसे बातचीत भी अंदर ही कर लेते हैं, ऑफिस का जॉब भी अंदर कर लेते हैं, अंदर ही कर लेते हैं। हमको ऐसा लगता है कोई ऐसा इंसान आए और जो हमको बस अ, समझ जाए, जो अंदर बैठा है ना उससे बात किए बिना समझ जाए, हमको कुछ बोलना नहीं पड़े। उस ऐसा इंसान आना चाहिए। बट आज क्या हो सकता, क्या आप ऐसे इंसान खुद हो दूसरों की लाइफ में? अरे दूसरों की छोड़ दो, अपने लाइफ में क्या आप अपने आप को समझते हो कि आप, अगर कोई भी जैसे चेतन है, अगर आप चेतन क्या अपने आप को सुनता है थ्रू फीलिंग्स, या अपने आप से ही बात करता रहता है, अपने आप को ही एक अलग पर्सनालिटी बना के उससे ही बात करता रहता है, उसको ही समझाता रहता है? क्या ऐसा है कि चेतन कुछ चाहता है अंदर से करना लाइफ में, और फिर जो एक दूसरी पर्सनालिटी उसको समझा के फुसला के वो चीज़ दबा देती है? ये हो रहा है। यू वांट टू डू सो मच थिंग्स इन लाइफ, यू नॉट डूइंग इट। So Lao Tse has said that more you use words to deceive people, deceive yourself, you're just wasting your energy. लाओ त्से को कभी किसी से जीतना नहीं था, और he said कि ये जो हार में जो खुशी है ना, I'm happy, मुझे कोई नहीं हरा सकता। हराएगा तब जब मैं जीतना चाहूँ ना, मुझे कोई हरा ही नहीं सकता, बात ही खत्म हो गई। अगर मैं लाइन में खड़ा रहूँगा तो मुझे फर्स्ट नहीं खड़ा होना, मेरे को एकदम लास्ट में खड़ा होना है, जहाँ पे कोई नहीं खड़ा होना चाहता। आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज मुझे पता है अगर मैं फर्स्ट खड़ा होऊंगा ना तो मेरे पीछे एक पूरी लाइन लग जाती है जो मुझे हटाना चाहता है। मैं लास्ट में ठीक हूँ, मैं हारा हुआ ही ठीक हूँ। अगर बहुत भीड़ है और सबको फ्रंट सीट चाहिए तो मैं एकदम पीछे जाके ऐसी जगह जहाँ पे कोई नहीं खड़ा होना चाहता, मैं वहीं पे खुश हूँ, मैं वहीं पे खुश हूँ। और आस्क योरसेल्फ, जो आप फर्स्ट सीट पे बैठे हैं, जो आप बहुत जीत गए हैं, बहुत कुछ अचीव कर लिया, आर यू हैप्पी? और उसी जगह जो अगर कभी कभी ऐसा होता है कि वाई यू फील दैट व्हेन यू डोनेट सम अमाउंट यू फील सो हैप्पी, बट व्हेन यू ट्रीट योर फ्रेंड्स दिस हैप्पीनेस इज नॉट द सेम। और उसको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। व्हेन यू फीड डॉग और सर्टेन एनिमल्स, यू अंदर से कुछ खुशी महसूस होती है, आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आप अपने फ्रेंड्स को फीड करके सोशल मीडिया पे कितना भी पोस्ट कर दो, कितने भी लाइक्स आ जाए, बट वो हैप्पीनेस परमानेंट नहीं है। एक दो साल पहले जिन फ्रेंड्स के साथ पोस्ट किया था, आज तो वो फ्रेंड शायद बात भी नहीं करते। आज से 10 साल बाद, 5 साल बाद जो फ्रेंड्स बनेंगे वो उनसे आप मिले भी नहीं। लाइफ इज जस्ट हैपनिंग टू यू, और आप बस एक को छोड़ के दूसरे को पकड़ रहे हो, दूसरे को छोड़ के तीसरे को पकड़ रहे हो, चौथे को पकड़ रहे हो, बस जैसे कोई नदी में डूब रहा है, जस्ट वो तिनके का उसको सहारा मिल रहा है। आपको डूबने से डर लग गया, आपको लगता है कि सहारा नहीं होगा तो मर जाओगे आप। नदी किसी को नहीं डुबाती, नदी कभी भी डुबा, नदी में कोई डूब के नहीं मरता। नदी में इंसान अपने डर से मरता है। और आप भी जिस चीज़ों को फेस नहीं करना चाहते वो आपका डर ही है। एक डेड बॉडी को नदी में डाल दो, वो तैरती रहती है ऊपर, लेकिन एक जिंदा इंसान अंदर जाके अपने हाथ पांव मारता रहता है बचने के लिए। वैसे ही आप लाइफ जी रहे हो, यू आर जस्ट लिविंग दैट लाइफ। यू वांट टू विन, यू वांट टू अचीव, यू वांट लव, यू जस्ट वांट सो मेनी थिंग्स कि वांटिंग ये भी स्ट्रेस बन गया फॉर सर्टेन मोमेंट। जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन कि ठीक है, मुझे कुछ नहीं चाहिए लाइफ से यार, मेरे पास जो पैसा है दैट्स मोर देन इनफ, मेरे पास जो फ्रेंड्स है दैट्स मोर देन इनफ, मेरे पास जो प्यार है दैट्स मोर देन इनफ, अगर मेरी शादी हुई है, मेरी शादी नहीं हुई, दैट्स मोर देन इनफ। मेरे पास जो अभी तक लाइफ में है, दिस लाइफ इटसेल्फ, कि मैं जो सांसें ले रहा हूँ या ले रही हूँ, दैट्स मोर देन इनफ। इससे बड़ा क्या गिफ्ट होगा लाइफ का कि हम सांसें ले पा रहे हैं? दैट्स मोर देन इनफ। फील ग्रेटफुल अबाउट इट एंड जस्ट ट्राई टू लिव इट। और जब जितना चीज़ों को छोड़ना चालू करोगे ना, उतनी ही चीज़ें वापस आएंगी आपके पास। आप जितने खाली हो जाओगे ना, उतना ही यूनिवर्स आपको भरता रहेगा। घर के अंदर पूरी लग्जरी बना दी है, दरवाजे बंद कर दिए, सनलाइट नहीं आती, वैसे ही आपके अंदर के घर के अंदर जस्ट कितनी सारी बातें भर दी है। इसको ऐसा करना चाहिए, उसे ऐसे बातें करना चाहिए, उसको मुझे सुबह कॉल करना चाहिए, ये मेरा सोशल मीडिया पर रिप्लाई नहीं कर रहा, कितनी बातें भर दी है
डिवाइन अंदर आएगा कैसे? हाउ देयर इज नो प्लेस, नो स्पेस लेफ्ट इनसाइड, so the divine can enter. Then you meditate with that so much of things inside you, and then you say, okay, I'm trying to meditate, but kitne sare thoughts are, what is this? Then you go to some psychic reader, some astrologer, sir aap please mujhe help kar do, what is this? You have to learn to get empty. I understand that there are certain priorities in your life, like your husband, your job, and all. But उसके अलावा there are so many things you are filled up with yourself. And the more you get empty, the divine can enter. आप खिड़कियां खोल दोगे ना तो you don't have to make a single struggle to bring sunlight inside. The sunlight will come on its own. And that's how Lord used to live his life. I don't want anything. I have everything. I don't want any success. I'm okay with my uh, not unsuccessful state. I'm okay with no friends. I'm okay with everything. Because the moment you start expecting friendship, the moment you start expecting love, the moment you start expecting love, you are at the same time inventing the opposite realities in your life. The person who loves you will leave you tomorrow, either for some reason or either through death. Something is going to happen to you. So every stress, whatever stress you are taking, it's just coming out of, maybe the words are trying to deceive, or maybe you are building unnecessary expectations out of it. Unnecessary expectations, no use at all. You can't sit silently, relax, nothing to do, just relax. Don't talk to yourself, don't talk to anyone, at least for half an hour a day if possible to you. Even in fact, you go to your washroom, you use the mobile, you talk to yourself, you make so much ideas. Don't sit silently. You ask, have you seen trees talking? Every nature around you is celebrating, except humans. The birds are celebrating, everyone is celebrating except you. ऐसा लगता है कि यूनिवर्स में सब कोई डांस कर रहा है और उसके बीच में आप बस बैठ के रो रहे हो. एंड यू वांट समबडी टू अंडरस्टैंड यू, आपको चुप कराए, आपके गले मिले, आपको प्यार करे, आपके साथ रहे. लोगों का प्यार तब बहुत ज़्यादा आता है जब आप अपने आप से बहुत प्यार करने लगते हो. लोगों का समझ आपकी तरफ इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है जब आप अपने आप को समझने लगते हो और जो आप फील करते हो वही करते हो. दुनिया भर के पैसे आपकी जेब में तब आने लगते हैं जब आप पैसे की एक्चुअल वैल्यू समझ जाते हो. इट्स ओनली फॉर एक्सचेंज. जब उससे आप मोह जितना छोड़ना चालू करते हो, जिस चीज़ से आप किसी से बहुत प्यार करते थे, बहुत उसके पीछे भाग गए, आपने उसको छोड़ दिया. जब छोड़ने के बाद भी लोग उसके बारे में सोचते रहते हैं, तो वो छोड़ना नहीं हो. आपने उसको दिमाग से छोड़ दिया, माफ़ कर दिया. आपने ये सोचा कि ठीक है, मेरा प्यार रहेगा, तुम मत आ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. कुछ साल बाद वो इंसान वापस आपकी लाइफ में आने लगा. जिस चीज़ को छोड़ोगे ना, वो आपके पीछे भागेगी. दैट्स अ लॉ ऑफ द नेचर. और जिस चीज़ के पीछे भागोगे, कहीं ना कहीं वो, इट्स लाइक अ सर्कल. वो आप उसके पीछे भाग रहे हो, वो आपके पीछे भाग रही है, सर्कल गोल गोल घूम रहे हो. द बेस्ट थिंग इज ड्रॉप, ड्रॉप विनिंग, ड्रॉप चेजिंग, and start whatever you expect people to do to you, start doing for yourself. You want people to love you, why don't you love yourself first? I understand that you need a companion in life, you need a lot of money, you need a lot of things. Obviously you need all these things, but ask yourself कि क्या हो गया है ना, ये चीजें आपके भी स्ट्रेस का कारण हो गई है. पहले ये चीजों में मजा आता था. आपने जॉब किया, आपकी सैलरी आ गई, सैलरी एंजॉय किया, अब उसके अंदर कंपटीशन हो गया, नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट लेवल. आपने किसी से प्यार किया था, दैट पर्सन वाज नाइस, अब आपकी एक्सपेक्टेशन बन गई है कि वो ऐसा ही करना चाहिए, वो मेरा ही लेना चाहिए. You wanted to take part in, you for example you uh, like dancing, आपको डांस करना अच्छा लगता था, अभी आपने एक डांस कंपटीशन में पार्ट ले लिया, अब आपको जीतना ही है. तो आपको जो डांस अच्छा लगता था वो एक साइड में छूट गया, अब आप जीतने की जिद में हो.
So that's why I'm saying if you like dancing, enjoy that. Just be yourself. There's a place inside you. It's a place of silence. जैसे एक बंद डब्बे में हवा रहती, खाली डब्बे में भी हवा रहती है, तो देयर इज अ प्लेस इनसाइड यू, इट्स साइलेंस। वो आप जितना भी ऊपर आपके शरीर के उधेड़ बुन हो रही है, वॉट एवर इट्स हैपनिंग टू यू, दैट प्लेस इज स्टिल, it's never touched. You can call it that space as soul, as God, whatever you want. And that empty space is more powerful than anything in the world. Even if you look at the science, the smallest particle is atom, subatoms, and inside that subatom there's an empty space, and you can make bombs through that atoms. जो इतनी smallest part होती है, you can make bombs out of it. Now even the scientists have started to realize that life is created out of nothing. मतलब there's a space, और अगर आप द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, जो वो उसको हम लोग एटम्स बोलते हैं, एटम्स को काट के उसमें सब एटम्स, अब एटम्स को काट काट के एकदम थ्रू सी माइक्रोस्कोप, इवन द साइंटिस्ट हैव रियलाइज्ड दैट इट्स अ एम्प्टी स्पेस. दैट मीन्स नथिंग, एवरीथिंग इज क्रिएटेड आउट ऑफ नथिंग, और जो नथिंगनेस होती है ना, दैट इज मोर पावरफुल. ये पूरा यूनिवर्स is filled out through with a lot of empty space, and then that empty space is more powerful than the physical reality that we call a metaphysical world. हमको जो दिखा, in fact the people who talk about law of attraction, they think uh, the thoughts are very powerful. What is our thoughts? It's coming from a metaphysical world. एक world है जो आपके अंदर है, किसी को दिखाई नहीं दे रही, लेकिन आपको दिखाई दे रही. दैट इज अ मेटाफिजिकल. दैट्स व्हाई आई से कि आप अच्छा सोचते रहो, अच्छा सोचते रहो, बिकॉज आप जितना अच्छा सोचते रहोगे, फॉर एग्जाम्पल यू नीड अ सर्टेन कार, आप उसके बारे में सोचते रहो, तो वो एम्प्टी स्पेस मेटाफिजिकल वर्ल्ड में आप जितना सोचोगे, दैट thing can has a possibility of becoming a matter. If in fact everything in your life, जो जो आपकी लाइफ में अभी है, हर चीज आपने क्रिएट की है फ्रॉम दैट एम्प्टी स्पेस. तो जो दिखाई नहीं देता है ना, वो दिखाई देने से वाली वस्तु से बहुत ज्यादा पावरफुल होता है. अब मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, भगवान आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन भगवान इसका जो नहीं दिखाई दे रहा, भगवान इज वेरी 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 पावरफुल. इवन वर्ड्स में एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, बट आई कांट एक्सप्लेन हाउ पावरफुल ही इज. तो आपको जो नहीं दिखाई देता है ना, दैट इज मोर पावरफुल. तो दैट्स व्हाट लॉर्ड हैज सेड, दैट यू शुड ऑलवेज try to find that empty space, that silence of your heart. And once you reach to that state of mind, reach state of silence, you will realize how godly you are, so you don't need words. जब आप खुद करते हो ना, तो बहुत एफर्ट्स लगते हैं. जब करते करते एक टाइम वो आता है जब आप करना छोड़ देते हो और कोई और करने लगता है आपके अंदर ना, देख, जब भगवान करने लगता है फॉर एग्जाम्पल, तो वो चीज़ की बात ही कोई और हो जाती है. मैंने आई सिट फॉर मेडिटेशन इनिशियली, जब भी मेडिटेट करने बैठता हूँ, तो एक टाइम आता है जब मैं नहीं रहता हूँ. आई कांट फील माई बॉडी, मैं होता ही नहीं है. आई कांट फील एनीथिंग. इट्स जस्ट एयर एयर, मतलब हवा की तरह है. मतलब जैसे इतना एक स्टेट आता है जहाँ पे आई फील कि लोग मेरे थ्रू पास हो जाएंगे. मतलब मैं एग्जिस्ट एज अ बैरियर के मैं खड़ा ही नहीं हूँ. अगर दो लोग पास हो रहे हैं तो मेरे थ्रू पास हो जाएंगे. इतना लाइटनेस हो जाता है. कहाँ चला जाता हूँ पता नहीं, बट जो मुझे देख रहा है मेडिटेशन करते हुए, उसको लगेगा मैं यहाँ पे आंख बंद करके बैठा हूँ, लेकिन कुछ नहीं होता है. मैं नहीं होता हूँ वहाँ पे, क्योंकि एक स्टेट के बाद ऐसा लगता है कि जैसे बच्चे की तरह चल रहा था, फिर एकदम से अचानक से ध्यान आया कि मेरी उंगली किसी ने पकड़ी हुई है. फिर जब उस उंगली पे ध्यान जाता है कि किसने पकड़ी है मेरी उंगली, खुद से ध्यान हट जाता है.
मतलब मैं नहीं रहता हूँ, होके भी नहीं रहता हूँ। तो वो जो स्टेट होता है ना, वहाँ पे मैं मेडिटेट नहीं कर रहा होता, वहाँ पे मैं बस होता हूँ। और वो स्टेट की में जो पावर है, दैट आई कांट एक्सप्लेन। Maybe that's how the Lord is trying to say. You can't explain. अभी आप बोलते हो कि मेडिटेशन करते हो तो आप थॉट्स आते हैं, आप बैठे रहो, यू कीप ऑब्जर्विंग योर थॉट्स। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप नहीं होंगे वहाँ पे, कोई म्यूजिक नहीं दिखाई देगा, इट्स एक्सट्रीम साइलेंस, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता आसपास कौन शोर कर रहा है, क्या हो रहा है, आप वहाँ पे नहीं हो। सो लॉर्ड सेज इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट दैट साइलेंस कि आप, और आप जब भी ऐसा होता है कि आप किसी को देख के आप ये सोचते हो कि वैसे इंसान ऐसा है, वो इंसान वैसा है, तो आप एक्चुअली वर्ड्स के थ्रू अपने अपना स्टेट ऑफ माइंड ही आप डिस्क्राइब कर रहे हो। आपको उस इंसान की कोई खबर नहीं है, वो इस इंसान के अंदर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। जैसे मैंने अपना मेडिटेशन का एग्जांपल दिया, यू कैन, अगर आप मेरे को देख के बोलोगे ओके ही इज मेडिटेटिंग, आप बस अपनी दशा बता सकते हो। ये आप अगर जब बैठते हो मेडिटेशन करने, तो आपको लगता है यू आर इन मेडिटेटिंग, बट आई एम नॉट मेडिटेटिंग, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, आई एम नॉट देयर ओनली। And that's why I always say the people who are died, they are not died. You can't just see them. वो फिजिकली, जैसे मैं अगर मेडिटेट कर रहा हूँ आपको दिख रहा है, और मैं एक अलग ही दुनिया में हूँ जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अगर मैं मर जाऊंगा तो मैं उसी दुनिया में चला जाऊंगा, बस फर्क ये रहेगा जो आप मुझे देख पा रहे हो, मुझे देख नहीं पाओगे, जिस इस शरीर को नहीं देख पाओगे, उसी तरह आपके जो भी लव वंस है आप उनको देख नहीं पा रहे, बट वो है। और आप शायद ये चीज़ तब समझ पाओगे, या मैं बहुत दिल से उम्मीद करता हूँ कि शायद आप ये चीज़ जब एक्सपीरियंस करोगे तो समझ पाओगे कि वो स्टेट क्या होता है। और व्हेन यू रीच दैट स्टेट, तो कहीं ना कहीं आपको फिर वर्ड्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट उसके लिए बहुत चीज़ें जो अंदर हैं, आप प्लीज़ उसको निकाल दो। मतलब जो इम्पोर्टेंट है मैं मानता हूँ, जैसे कि एम्प्टी रूम है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आप रख सकते हो, लेकिन कितनी सारे सामान भर के रखा है कि आपको जैसे कबाड़ी की दुकान हो गई, चलने की जगह नहीं। वैसे अंदर, बाहर यू लुक सो ब्यूटीफुल, एवरीथिंग लग्जरी क्लोथ्स, लेकिन इनसाइड यू आर लाइक कबाड़ी की दुकान, चलने की जगह नहीं है। तो पहले उसको खाली करो, फिर मेडिटेशन आस्ते आस्ते होने लगेगा। एंड वन ऑफ द इवन मेथड ऑफ एम्प्टिंग इज थ्रू डायनेमिक मेडिटेशन, एंड जो मैं अपने रिट्रीट्स में करवाता हूँ। My next retreat is on Mumbai on 4th and 5th Feb, और मैंने आई थिंक एक महीना पहले ही अनाउंस कर दिया है, तो ट्राई टू कम टू दैट रिट्रीट, बिकॉज वी हैव limited spaces in that resort, और I'm expecting कि I'll help you out to get empty from inside and know the state which I am talking about through meditation. So this was all about Lhotse, and बहुत कोशिश की मैंने, मैं आपको समझा पाऊँ कि what was his thought process, but as I said, it's very difficult to explain him because he was the master of silence. He always came from that space of silence inside him, and through that space, whatever you do in life, you are not doing at all. Then God आपकी उंगली पकड़ लेता है और आप बस चलते रहते हो। That you don't have to just think कि कौन मेरे साथ रहेगा, कौन, मैं अगर डिवोर्स कर लूँ तो कौन मेरा साथ देगा, मेरे फाइनेंसेस कैसे होंगे, अगर लाइफ लॉन्ग मेरी शादी नहीं हुई तो क्या होगा, अगर मेरे पेरेंट्स मेरे साथ नहीं रहेंगे, तो ये सब चीज़ें, वर्ड्स वर्ड्स सब डिसअपियर हो जाएंगे। ऐसे लगेगा कि पूरे वर्ड्स एक आग की मशाल के अंदर बस जलते जा रहे हैं, जलते जा रहे हैं, जलते जा रहे हैं, और सिर्फ राख रह जाती है फिर। और फिर जब अंदर से पूरे खाली हो जाते हो, इंस्टेंटली डिवाइन टेक्स प्लेस। और ऐसा नहीं कि डिवाइन नहीं है, इट्स देयर 24 आवर्स, आप अंदर भरे हुए हो। डोंट थिंक कि एक स्टेट आएगा जब डिवाइन का एक राइट टाइमिंग होगा,
ऐसा कुछ नहीं होता. राइट टाइम स्टार्ट द मोमेंट यू आर एंट्री फ्रॉम इनसाइड. सूरज की रोशनी है, जस्ट खिड़की खोलो, वो है वहां पे, वो खुद ही अंदर आ जाएगी. आज के लिए इतना ही. माय ग्रीटिंग्स टू गॉड इनसाइड. और आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन. एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर being part of this spiritual tribe community. I love all of you a lot. Bye bye.